الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے بنیادی، وہ جو ملک میں موجودہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں پہلے گلگت بلتستان میں ہوئی، پھر خیبر پختونخوا میں ہوئی، چند دنوں سے پنجاب میں شروع ہوئی ہیں، اور اب وہ سیلابی ریلا صوبہ سندھ میں بھی داخل ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بھی حکومت سندھ کی طرف سے جو اپنے اقدامات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس پہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری سندھ حکومت نے جو ہے وہ پیشکش بھی کی کہ کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، کسی بھی ریلیف کام میں، کسی بھی جو ہے لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہو، تو حکومت سندھ پنجاب کے صوبے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر اور تمام جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اس اپنے پنجاب کے ان معصوم بھائیوں کے ساتھ جو کہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کو فیس کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی میں بھی شامل ہیں، اور ویسے بھی ان پریکٹیکل بھی جہاں جہاں پہ بھی جو ہے ضرورت پڑے گی تو پوری پیپلز پارٹی بھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس وقت کل بھی جیسے یہ ہوئی تو حکومت سندھ کی طرف سے چیف منسٹر صاحب نے وہ لمحہ بہ لمحہ تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے منسٹر اریگیشن جام خان شورو صاحب کو فیلڈ میں بھیجا ہوا ہے، وہ اس وقت بھی سکھر کے دورے پر ہیں اور سکھر کے بیراجز کو وزٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے کوئی ویک پوائنٹس ہیں اس کو بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت گڈو پہ جو ہے وہ جو انفلو ہے وہ 3,33,361 کیوسک ہے، اور جو آؤٹ فلو ہے وہ 3,02,232 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سکھر پہ اس وقت جو ہے وہ 2,66,370 کیوسک ہے جو ان کا انفلو ہے، اور جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,12,300 کیوسک ہے۔ کوٹڑی میں اس وقت 2,44,225 کیوسک ہے، اور جو اس کا انفلو اور آؤٹ فلو اس کا جو 2,11,870 کیوسک ہے۔ تو سارے پانی کی اور پورے سیلابی صورتحال کی پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ حکومت سندھ کر رہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ میں رکھا گیا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی الرٹ میں رکھا ہوا ہے، اور جو بھی کچے کے ایریاز ہیں وہاں مکینوں کو کچھ زیادہ تر مکین جو ہیں جب کچے میں جو رہائش پذیر ہوتے ہیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ خود از خود جو ہے وہ پکے کی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا سیف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ معاونت کریں، جہاں پر بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو حکومت سندھ مکمل طور پر وہاں پہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کے میجرز ہیں اس کے لیے بھی جو پی ڈی اے میں ہے، منسٹر جو ریلیف ہیں، ری ایبلیٹیشن ہے، مخدوم محبوب زمان صاحب، وہ بھی کل میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی بریفنگ دی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے مطلب ابھی الحمدللہ ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال سے چیز ہوگی تو اس حساب سے ٹینٹس، چٹائی، واٹر کولر، جیری کین، پورٹیبل ٹوائلٹس، سولر لائٹس، واٹر ٹینکرز، ہائیجین کٹس، ماسکیٹو نیٹس، سلیپنگ میٹس، میٹرس، کچن سیٹ، فلٹریشن یونٹس، یہ سارے مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت سندھ کی پی ڈی ایم اے کی بوٹس ہیں، وہ بوٹس بھی مختلف اضلاعوں میں جو ہے وہ اس کی ترسیل بھیج دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں پری ایمپٹیو میجرز ہیں۔ اس میں اس وقت میں کہوں گا کہ سندھ کے لوگوں کو اس وقت پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سیلابی ریلے کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حکومت سندھ نے جتنے میجرز کیے ہیں تو کوئی اتنا بڑا اس وقت کوئی بڑا خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سیلاب کے ساتھ ساتھ کوئی برساتیں اگر پڑ گئیں یا کوئی موسمیاتی طور پہ کوئی چیز ہوئی تو وہ اس کے لیے بھی تمام اس انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مانیٹرنگ
یونٹ بھی سی ایم ہاؤس میں قائم کیا ہوا ہے جس کے ذریعے اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سب سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہیں. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی, اریگیشن منسٹر صاحب سے, اور تمام جتنے بھی محکمے کے منسٹر صاحبان ہیں ان سے ڈائریکٹلی کوارڈینیشن میں ہیں. اور سب کی یہی کوشش ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پری ایمپٹیو میجرز فوری طور پر لیے جا سکیں کہ حکومت پہلے سے ہی الرٹ ہے. تو حکومت نے ساری یہ چیزیں کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی مل گیا ہوگا کہ چیف منسٹر ہاؤس سے کہ مختلف منسٹر صاحبان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں, جس میں مکیش چاولہ صاحب جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے, جام اکرام دھاریجو صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, ریاض حسن شاہ شیرازی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, ناصر حسن شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, اور ناصر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایریا ناصر صاحب کو دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھ کر سردار محمد بخش مہر صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے, محمد علی ملکانی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں ایم پی ایس, ان کو بھی چاہے وہ لیفٹ بینک پہ یا رائٹ بینک پہ جو ہیں ان سب کو بھی اپنی اپنی کانسٹیٹیونسی میں اپنے اپنے علاقوں میں آپ موجود رہیں کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی جو ہے وہ ہماری پوری ڈپلائمنٹ مکمل طور پر ہو. ہمارے ایم پی ایز, ہماری انتظامیہ, ہمارے ایم این ایز, ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکرز, تو سب لوگوں کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے اور قدرتی آفت میں سب کو جو ہے جوائنٹلی کام کرنا ہوتا ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں پہلے سے الرٹ ہوں, حکومتیں پہلے سے تیاری کریں. تو اس کی پوری مکمل طور پر تیاری حکومت سندھ کی جانب سے اس وقت موجود ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جی کوئی بڑا نقصان نہ ہو. پنجاب میں بھی جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کے لیے بالکل ہم نے کہا کہ جی یہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس میں ہم سب جو ہے پورا پاکستان جو ہے اب اس وقت پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. بڑی بارش ہوئی تھی جو بلوچستان کا علاقہ آیا تھا. تقریباً 3 دہائیوں سے کوئی ایسا بڑا سیلاب سندھو میں پنجاب سے یا ہندوستان سے داخل نہیں ہوا. اور 2022 میں جو یہاں برساتیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے مقام پر کوئی 10 لاکھ یا 9 لاکھ کسی کے قریب پانی آئے تو وہ آپ کے بندوں میں اتنی طاقت ہے, کیونکہ 2010 کے سیلاب میں 2 مقامات پر دریائے سندھ میں شگاف پڑے جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے. دیکھیں جی حکومت سندھ کی جانب سے 2010 میں جب تباہ کاریاں ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تباہ کاری تھی اور اس وقت بھی بہت بڑا چیلنج تھا. اس وقت چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے پرسنلی ایک ضلع کا وزٹ کیا. چیف منسٹر نے پرسنلی ایک چیز کو مانیٹر کیا اور ان کی مکمل طور پر جو ہے چیف منسٹر صاحب نے اس چیز کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان چیز کو فیس کیا. اس کے بعد کچھ 4-5 جتنے بھی سیلاب یا برسات کی تباہ کاریاں تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ نے ہمیشہ پری ایمپٹیو میجرز لیے اور بہت بہتر طریقے سے, اور بہت بڑا نقصان تھا. لاکھوں کے ملینز کی تعداد میں لوگ بے گھر تھے, ملینز کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچانا تھا. تو حکومت سندھ نے ہر جگہ پہ جو یہ کوشش کی. لاسٹ ٹائم بھی جو سیلاب ہوئے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تباہ کاریاں تھیں اور اس حد تک تباہ کاریاں تھیں کہ بہت مایوسی بھی لوگوں میں نظر آ رہی تھی. تو حکومت سندھ نے پہلا جو کام کیا, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بھی آئے, انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی تباہی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہ جب انہوں نے ایریل ویو کیا تو نظر آیا ہر جگہ پانی اور پانی تھا, وہاں پہ کوئی سوکھی جگہ نہیں تھی. اس موقع پہ اس وقت بھی حکومت نے پہلا کام کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ جی بارشیں بھی بہت بڑی بارشوں کی تعداد تھی, تو ہم نے کہا کہ جی اگر ہم اس کو لوگوں کو ابھی ڈرائی راشن دیں گے تو لوگ راشن میں کھانا بنائیں گے کیسے, اور ان کو بنانے کے لیے ان کو لکڑیاں چاہیے. لکڑیاں جو ہیں وہ ساری گیلی ہیں, ہر جگہ پانی ہے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو 3 وقت کا کھانا پکایا دیا گیا, کوکڈ فوڈ سرو کیا گیا. اور وہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اسی وقت ان کا ویژن تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہر جگہ پہ کوکڈ فوڈ پرووائڈ کریں. تو ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے ایک گاؤں میں جو لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں ان کو سرکاری گاڑیاں جا رہی تھیں, ان کو پکایا کھانا دیا جا رہا تھا. تو یہ ایکسپرٹیز انفارچونیٹلی یہ واقعہ سندھ میں ہوئے زیادہ, لیکن سندھ حکومت نے بہت الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے کہ ہر چیز کو, ہر اس طرح کے برساتی اس طرح کے چیلنجز کو یا سیلاب کی صورتحال کو دیکھنے کے چیلنجز کو ہمیشہ حکومت سندھ نے جو ہے اس کو بہت پری ایمپٹیو میجرز لیے اور بالکل اس کو پرومپٹ اس کو رپلائی کیا. پھر اسی طریقے سے
जब ये तबाहकारियाँ हुई तो आपने देखा कि 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं उन लोगों के, 21 लाख लोगों के घर, 21 लाख खानदानों के घर तबाह बर्बाद हो चुके थे, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अंडर द विजन ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज दिन तक, कल भी जो चेयरमैन साहब जो है वो सनतें लोगों को दे रहे थे। तो मतलब आप ये देखें कि वो 21 लाख घरों का प्रोसेस जिसमें 8 लाख घर बन चुके हैं और दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा ये हाउसिंग स्कीम है, जिसको वर्ल्ड बैंक भी मानती है और पूरी दुनिया मानती है कि इससे पहले जब नेपाल में तबाहकारियाँ हुई और 8 लाख घर बने तो ये 21 लाख घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने वो बनाने का जो अज़म किया, तो यही ये विजन होता है। तो आप जब बड़े से बड़ी तबाहकारियाँ हैं, मतलब 21 लाख घर कहना बहुत आसान है, 21 लाख ख़ानदानों को बसाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यही इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम जितने सिंध के महकमे, सब के सब एक्टिवली जो है उस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक मिनट संजय, देखिए जी, जहाँ तक डैमों की बात है, इस पे 3 सूबे जो है वो पहले से करारदाद अपनी रिजर्वेशंस भी मंजूर कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं और अपनी करारदाद कंट्रोवर्शियल इशू कभी भी जो है वो मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये कुदरती आफतें हैं, अगर कोई डैम होते भी तो भी इस आफत से बचा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग बात करें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। इस वक्त हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तानियों को एक यूनिटी की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि इस यूनिटी से ही हम मिलकर लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की हाउसिंग स्कीम की, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएँ हो सकती हैं, लेकिन हमें पॉजिटिवली ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए, इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि जितने भी पानी के नेचुरल फ्लोज हैं उस पर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। आप आज भी जाके देखें कि पूरे कच्चा, भी कल पंजाब से भी आवाज़ में सुन रहा था कि पंजाब के भी कच्चे के इलाकों में यही कंप्लेंट हो रही थी कि जी जो नेचुरल फ्लोज है वो लोगों ने आबादियाँ की हुई हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं। अब कच्चे के इलाकों में वहाँ पे घर बनने ही नहीं हैं, लोगों ने वहाँ पे मस्जिदें भी, मसाजिद भी बना के बैठे होते हैं, लोग अपने पूरे के पूरे गाँव के गाँव आबाद करके बैठे हुए हैं। हमने भी एक असेसमेंट किए कि अगर ये जो पानी जो भी कच्चे में आएगा, डेफिनेटली पानी तो आना ही आना है कच्चे में, तो उसके बाद कितने लोग अफेक्टेड होंगे, उसकी पूरा डेटा विलेज वाइज है हमारे पास। जो कल पीडीएमए ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें मेरे पास वो पूरा इस वक्त डेटा है कि कितने लोग उसमें अफेक्ट हो सकते हैं और कितने लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो लेकिन ये नेचुरल फ्लोज पे हमेशा इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो बजट होते हैं कि हमने क्योंकि हमारे आबा व अजदा इस इलाके में थे तो हमें इस इलाके से निकलना नहीं है। आप अगर नेचुरल फ्लो देखें दरिया का, प्री पार्टीशन देखें, उससे पहले देखें, और अब आप अगर गूगल पे जाके देखें तो आपको ये पूरा नक्शा तब्दील हो जाएगा। ये सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। तो उन नेचुरल फ्लोज में लोगों ने जो है वो ये प्रॉब्लम्स किए होते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त हमारा काम ये है कि जी लोगों को, अगर कोई इस तरह की इम्कानी सूरत हाल है तो लोगों को रेस्क्यू करें, और अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो लोगों को रिलीफ दें, और उनकी रिहेबिलिटेशन की अगर खुदा न खासा ज़रूरत पड़ी तो रिहेबिलिटेशन भी उसको करेंगे। लेकिन हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अपनी लीडरशिप के अहकामात पर ऑन ग्राउंड है, तैयार है, तमाम मिनिस्टर्स डिप्लॉयड हैं, तमाम एमपीज एम एन, तमाम पूरी टीम, सरकारी मशीनरी वो हर जगह पे डिप्लॉयड है। जी जी, मैं आपको एक वादे कर दूं मेरे भाई, ये जो अगर आप वहाँ पे 10 लाख पानी क्यूसिक जो है वो सारा का सारा यहाँ नहीं आना है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ आना है, ज़रा दरिया का लेवल बढ़ा जाएगा, लेकिन ये पानी स्प्रेड भी होना है, जो कि स्प्रेड होता हुआ आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। तभी इस वक्त पंजाब में आप जब देख रहे हैं कि जी उनके ननकाना साहब और बाकी डिवीज़नें जो हैं, वज़ीराबाद, यहाँ पे जो पानी गया तो ये सारा पानी स्प्रेड होता आ रहा है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी नाक़िस नॉलेज है, कि अभी तक इतना बड़ा कोई ज़्यादा ख़तरा जो है वो शायद अल्लाह करे का यहाँ पे ना हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल होगी तो हर बैराज की अपनी कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी में हम समझते हैं कि हम लोग
आराम से इस चीज़ को फेस कर लेंगे। जी फयाज दो। शकील साहब, आपके सिंध में बारिशों के जो है खदशात वो कम हो गए हैं, मगर कराची शहर में जो सड़कों की सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी है। तो उस पर क्या कहेंगे कि उसको फौरी दोबारा रिपेयर के हवाले से कोई इक़दाम हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है, क्या होगा? देखिए इस पर काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने पहले भी पैसे रखे हुए हैं, अभी बीच में जो टूटी हुई सड़कें हैं उसको बनाने के लिए काम शुरू होना था, लेकिन मानसून की वजह से जानबूझ के उसको स्लो किया गया, जो कि बाय पर्पस और अच्छा था कि मानसून के बाद उसकी रिपेयर करें। अगर मानसून में उसको रिपेयर करते तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो बड़ा कराची का मसला है वो रोड कटिंग, जिसका चीफ मिनिस्टर साहब भी जिक्र कर चुके हैं, मेयर कराची भी जिक्र कर चुके हैं। रोड कटिंग के मध्य में जो है अरबों रुपए मुख्तलिफ वफाकी महकमों को दिए गए हैं, जिन्होंने सुई गैस है या बाकी है कि जो उन्होंने ये चीज़ें करनी, जो उन्होंने टाइम पर अभी तक नहीं की, उसके लिए उन वफाकी सुई गैस और इन गवर्नमेंट के उन इदारों से बात भी चल रही है कि जी वो अपने काम टाइमली करें। लेकिन हुकूमत सिंध की जहाँ तक बात है कि फुली फोकस है, जैसे ये मानसून सीज़न ख़त्म हो जाएगी तो जो टूटी सड़कें हैं जो कि अभी बारिशों की वजह से या रोड कटिंग की वजह से टूटी हैं उसको दोबारा बनाया जा सके। सलीम ये बता दें कि अब तक सिंध हुकूमत का क्या सर्वे है, कितना पानी आ गया, तो आपने बता दिया। कौन कौन से इलाके मुतासर हो सकते हैं और उन इलाके वकीलों को जो है वो मुंतकिल करने के लिए हुकूमत ने क्या बंदोबस्त किया है? देखिए जी, हुकूमत सिंध जो है, अभी तक मैंने आपको कहा कि मुतासर आपका जितना भी दरिया के साथ वाला इलाका है, ख़ासतौर पर जैसे हम कच्चा कहते हैं, वो मुतासर होने के वो डेफिनेटली जब पानी का रेज होगा तो वो कच्चे में पानी आएगा। तो उससे कुछ लोग अभी तक वॉलंटरली जा चुके हैं, कुछ लोग जो है वो डेफिनेटली अगर वॉलंटियर नहीं गए तो उनको इंतज़ामिया निकालेगी, अगर वहाँ पानी आया उससे भी नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि सरकारी मशीन इस्तेमाल हो उनको निकालने के लिए। लेकिन इस वक्त तक मैंने अपना सारे एरिया कच्चा के जितने भी हैं आप उठा के देख लें, लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक, तो वो मुतासर होने के खदशात हैं। शरीफ साहब, ये बताइएगा कि एक तो आज हाफिज नईम महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पंजाब में और वहाँ तो जो कुदरती आफात आई है जिसके बायस ये मसले, और कराची को जो है वो इंसानी नायज ने डुबो दिया और कराची इस वजह से जो है वहाँ पे पानी खड़ा रहा और लोग जो है कराची के परेशान रहे। एक तो हाफिज साहब का ये बयान आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि ये जो फरहान गनी साहब वाला जो मामला है वो आज भी पुलिस रिमांड पे हुआ है, आखिर क्या वजूहत है? क्या टाउन का चेयरमैन पूछ भी नहीं सकता किसी से कि आप यहाँ पे क्यों खुदाई कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक आपने बात की, पहला आपका सवाल था जमात इस्लामी का। अब वो जमात इस्लामी के अमीर जो हैं उन्होंने आज तक ज़िंदगी में या जमात इस्लामी ने कोई काम नहीं किया सिवाय क्रिटिसिज्म करने के लिए, और उनका काम ही है कि सुबह 11:10 पे आते हैं, टीवी पे अपीयर होते हैं और वो अपनी वो जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाती है माजरत के साथ। तो काम करें, वो उनके पास अपने टाउन से। हमने तो इस बार बरसातों में भी हमने जमात इस्लामी के उन नाज़मीन की भी तारीफ़ की कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग भी निकले, लेकिन उनको असल में निकलना चाहिए। उनको इतने बड़े फंड्स मिलते हैं, वो यूटिलाइज़ होने चाहिए। अब जमात इस्लामी सिर्फ अगर तनकीदें करेंगी तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक आपने फरहान गनी साहब की बात की, तो फरहान गनी साहब का केस में एक FIR कटी है और उन्होंने वॉलंटियरली अपने आप को पुलिस में जो है FIR के बाद पेश हुए। उनके पास एक और ऑप्शन था, वो बेल लेकर भी बैठ सकते थे। उन्होंने अपने आप को वॉलंटियरली इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ शामिल तशवीश कराया, लेकिन वो खुद उन्होंने वॉलंटियरली पेश हुए। अब कानून मौजूद है, अब कोर्टों ने जो है वो उसका फैसला करना है। अच्छा सर, अमीर साहब, मेरा भी थोड़ा सा हटके सवाल है, इसलिए मैंने इंतजार किया कि बात भी करता हूँ। एक तरफ ये बारिश की सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ KP में एक वाकया हुआ है कि सिंध के 12 लोग हैं जो डोमिसाइल पर वहाँ अपॉइंट हुए हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं और अजीब व गरीब किस्म की एक सूरत हाल लसानी बुनियाद पे वहाँ पर पैदा की गई है और नफरत अंगेज जो है वो सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। तो इस हवाले से जो 12 सिंध के बासी हैं उनके हवाले से सिंध क्या कुछ कर सकती है, या सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? यही कराची है या लाखों की तादाद में हज़ारा के लोग हैं? देखिए हमीद साहब, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है ना, ये अभी तक मेरे हिसाब में ये मफरूज़ों पे मुबनी है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक क्लिप और पोस्ट है। जब तक इसका ऑफिशियली नहीं आ सकता तो मैं इसको ऑफिशियली जवाब नहीं, इसको हमें वेरीफाई करना होगा। मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप देखी है, मुख्तलिफ लोगों ने पोस्ट की है, लेकिन सोशल मीडिया को अभी तक इसलिए ऑथेंटिक नहीं समझा जाता कि सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें मफरूज़ों पर भी मुबनी होती हैं, या जिसके कोई आगे पीछे जैसे कोई सर पैर ना हो। हाँ, अगर ऑथेंटिक हो जाए कि खुदा ना खासा ये वाकई इस तरह की हुई चीज़, तो डेफिनेटली हम अपने उसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे, और ये नहीं होनी चाहिए। हमने पाकिस्तान में सबको जो है, सब पूरा पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की सोच कम अज़ कम सिंध ने नहीं रखी आज तक। अगर ये पोस्ट सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये पोस्ट शायद मफरूज़ों पे मुबनी हो। जी शरीफ साहब, हमने अमूमन देखा है कि सोशल मीडिया पर जब कभी भी सिंध की बात हो, कराची की बात हो, शहरी
या देही सिंध की बात हो, पीपल्स पार्टी का जब तस्करा आता है तो लोग पुरुमीद नहीं नजर आते, ना उम्मीदी का इजहार करते हैं और फौरी तौर पर वो तमाम चीज़ों को लिंक कर देते हैं करप्शन से। तो इस तासुर को आप हैसियत वज़ीर इंफॉर्मेशन इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए लोगों को, कराची के अवाम को समझाने के लिए क्या कहना जी, चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया, रियली आई लाइक दिस क्वेश्चन। हालांकि टॉपिक ये नहीं था, मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। देखिए जी, एक परसेप्शन बनाई जाती है, कैंपेनें चलाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कैंपेनें चलाई गई, सोच समझ के चलाई गई, और अभी से नहीं चलाई गई। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसमें उन्होंने अपनी शराकतदारी की, सॉरी। तो और मुझसे छुपी हुई बात कोई नहीं तो नहीं कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि माजी में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, तब भी उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेनें चलाई गई, हेलीकॉप्टरों से तक भी जो है वो पम्फलेट फेंके गए। उसके बाद जब प्राइवेट चैनल्स आए तो प्राइवेट चैनल में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा कैंपेनें चलाई गई, बाकायदा सोच समझे चलाई गई, और एक परसेप्शन दी गई जो आपने बात की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पार्टियां ये कैंपेनें चलाती थी उनके खिलाफ भी कैंपेनें चली। कैंपेनें उस तरीके की नहीं चली, लेकिन इल्ज़ाम उन पर भी लगे ये, और आपने देखा कि उस करप्शन के इल्ज़ाम फिर मुख्तलिफ पार्टियों पर लगते रहे, मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा गिरफ्तार होते रहे, करप्शन के इल्ज़ाम पर ही गिरफ्तार होते रहे। सारी पार्टियों के पाकिस्तान में जितनी भी जो हुक्मरान जमातें रही हैं, सबकी पार्टी, आज भी एक पार्टी का सरबराह जो है वो जेल में, उस पर भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं। तो बात है कि हाँ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कैंपेनें चलाई गई बड़ी ज़ोर शोर से चलाई गई, बाकियों के खिलाफ उतनी इंटेंसिटी की शायद वो कैंपेन न चली, लेकिन इल्ज़ाम सब पर वही लगे हैं और सब उन्हीं केसेस में हैं। तो मेरे भाई, तो जो कैंपेनें चलाना और मफरूज़ देना वो अलग बात है, रियलिटी अलग है। रियलिटी यह है कि पीपल्स पार्टी ने हर जगह काम किया है। मैं आपको वही हमेशा कहता रहता हूँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आज भी हेल्थ सेक्टर में अगर पूरा सब अच्छा काम करें तो हेल्थ सेक्टर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में ही सबसे बेहतर क्यों है? 21 लाख घर, पूरे सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में आए, हर बार आए, 21 लाख घर सिर्फ सिंध में ही क्यों बन रहे हैं? इसी तरीके से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध में क्यों हो रहे हैं? टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी सिंध में ही क्यों हैं? नई यूनिवर्सिटियाँ कहीं और क्यों नहीं बन रही? ख़वातीन के लिए गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस सिर्फ सिंध में ही क्यों हैं? इस तरीके से ये बिजली के जो प्रोजेक्ट हैं, थरकोल, सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ मैं, थरकोल का जो प्रोजेक्ट है, आपको पता है बिलियंस ऑफ रुपीस को, 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रकम नहीं देता, मुझे शायद वो चले $100 बिलियन का शायद प्रोजेक्ट था, मे बी आई एम रॉन्ग, तो मेरी उसको गलत नहीं समझिएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने अपने हर साल अपने पैसे मखसूस करती है उस प्रोजेक्ट के लिए, थरकोल की बिजली के लिए। वो थरकोल के बिजली का जो प्रोजेक्ट है, या 10 बिलियन था या 100 बिलियन, याद नहीं आ रहा, $10 बिलियन था शायद। वो जो प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध हर बार देती है, वो फ़ायदा सिंध को थोड़ी होना है, वो पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। थरपारकर के कोयले से जो बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बन रही है बिजली, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा। और आज भी आपके जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, आपके एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं जी अगर बिजली सस्ती बन सकती है या मिल सकती है तो सिर्फ जो है वो कोल से ही बन सकती है। ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसको प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये थरकोल के प्रोजेक्ट को आके पाए तकमील तक पहुँचाया, जिसको उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट को शेल्फ किया, थरकोल को। और आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान को कोयला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो निकाल के वो सोल्यूशन दे रही है, जिसमें आप 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बन रही है? तो यही फ़र्क है ना कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं। जितने भी, चाहे वफा की हुकूमत थी तभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो जो है CPEC के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स हों। तो सारे लोगों को अब जो मासूम ख़वातीन को 10-10 हज़ार रुपये घर पे हर महीने मिल रहे हैं, जो कि गुर्बत की लकीर नीचे, तो कितनी बड़ी बात है ये। और आप टारगेट करके दे रहे हो, और वो डेटा दुनिया के 10 किस्म के जो बड़े ममालिक के वो इदारे हैं वो उसको चेक कर सकते हैं कि किसी गरीब को मिल रहा है कि बीच में। ठीक है, लोगों ने कोशिश की कि उसमें गलत काम भी करें, लेकिन वो सारे साइड होते गए। फिर वो उनकी दोबारा उनकी जब हुई चेकिंग वगैरह हुई तो वो लोग साइड में। तो ये हुकूमतें जो अच्छी हुकूमत होती है, समझदार हुकूमत है, वो हमेशा वो बेहतरीन की तरफ काम करके लिखी जाती है। एक यार उस बेचारे का ये जो आपने कराची में सवाल किया कि कोई मुहिम चलाई जाती है, कराची जिस तरह मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड और टाउन के अंडर में आता है, इस तरह जब भी, लेकिन लोगों का तासुर तो यही है ना कि सिंध हुकूमत है
फिलैक्टाबाद में 4 दिन पहले रोड बनी, वो 4 दिन के अंदर टूट गई, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि वो टाउन चेयरमैन ने बनाई है, लोग तनकीद पीपल्स पार्टी को हुकूमत पे करते हैं। इस तरह कंटोनमेंट एरिया के जो सफुरा हाइड्रेट वाले रोड है और जो एयरपोर्ट वाले रोड है, टूट फूट का शिकार है। तो मतलब ये ठीक है कि अपने हुदूद, तो क्या हुकूमत सिंध इनको पाबंदियां से बात कुछ नहीं कर सकती कि यार आप इतनी घटिया किस्म की रोडें बना दें, तनकीद हमको होती है, तो कुछ चेक एंड बैलेंस, कुछ सिस्टम। ऐसे जवाब मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं वो नहीं दे रहा आपको, सुने। अच्छा वो फिर वो जो टीवी चैनल दिखा रहे होते वो भी थोड़ा पूरा कराया करें ना, लेकिन अब बात ये है कि इसका हल ये है, नहीं ना, आपकी बात ठीक है, तनकीद सिंध हुकूमत में होती है। लोग समझते हैं कि हर सड़क सिंध हुकूमत की है, चाहे वो किसी टाउन की है या डीएमसी की है, वहाँ पे किसका चेयरमैन है, कोई भी है। देखिए इस वक्त ज़रूरत यह है कि सब मिलकर, अगर कराची की हम बात करें तो कराची में जितने भी एरियाज़ हैं उन सब लोग मिलकर जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट करें, एक मिलकर जॉइंटली एफर्ट करें कि हम अपने इस शहर में जो भी अगर कोई इस तरह के लकूनाज हैं उनको ठीक करें, ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और बेहतर से बेहतर चीज़ देखें। लोग डिज़र्व करते हैं बेहतर सहूलियात, लोग वो डिज़र्व नहीं करते जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे होता है। मतलब हर महकमे में बेहतरीन, और पूरे पाकिस्तान में इशूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी कल मैं देख रहा था पंजाब के लिए भी कुछ चल रहा था कि जी कि एक शायद सियालकोट शहर में सड़कें पूरी की सारी बह गई, उस पर एक शायद वफाकी वज़ीर का कोई ख्वाजा आसिफ साहब का कोई बयान देख रहा था, पता नहीं वो भी मैंने कल देखा सोशल मीडिया पर, सही झूठे मुझे नहीं पता, तो सही है वो, अगर सही तो उन्होंने भी लगा दिया। तो मकसद कहने का ये मेरे भाई कि सब इंसान हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की चीज़ को बेहतर किया जाए, बेहतर से ऐसे हम पॉलिसीज़ बनाएं कि चीज़ें अच्छी बने और देर पा बने। सचिव साहब ये बताएं कि अगर कराची में थोड़ा पानी होता है या लोगों को मुसीबत आती है तो लोग मदद करने के बजाय कहते हैं कि जी इंतजामी यूनिट बनाए, सिर्फ को तोड़े। अभी पंजाब के हर कभी में इस वक्त सैलाब है, या पंजाब में इतने समय बनने चाहिए क्योंकि वहाँ तो हर कभी में पानी है। देखिए कल मैं इसका जवाब दे चुका हूँ भाईजान, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लियर है, सिंध हुकूमत का स्टांस क्लियर है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।